নমস্কাৰ ND24 চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ মই ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে সেমিফাইনেল আৰম্ভ হৈছে আমি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ সেমিফাইনেলৰ কথা কোৱা নাই কাৰণ হ'বলৈ সময় আছে কিছু কিন্তু ইয়াৰ মাজত ৰাজনীতিৰ সেমিফাইনেল আৰম্ভ হৈছে লোকসভাৰ সেমিফাইনেল আৰম্ভ হৈছে প্ৰত্যেকবাৰৰ দৰেই আপোনালোকে গম পায় যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কেইখনমান এনে ৰাজ্য থাকে বিশেষকৈ হিন্দী বলৰ যদি আমি ৰাজ্য কেইখনৰ কথা কওঁ ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় এই ৰাজ্য কেইখনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণাত্য তেলেংগানাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আৰু মিজোৰাম এইবাৰো এই পাঁচ ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচন সম্পন্ন হ'ব 3 ডিচেম্বৰত ফলাফল ঘোষণা হ'ব গতিকে আজি তাৰ আৰম্ভণি ঘটিছে আৰম্ভণি হৈছে মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা আৰম্ভণি ঘটিছে ছত্তীশগড়ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা ছত্তীশগড়ত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন হ'ব আপোনালোকে গম পায় আৰু মিজোৰামত একেদিনাই অৰ্থাৎ আজি 40টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আপোনালোকে এই কথাও গম পাইছে যে ছত্তীশগড়ত 90খনৰ ভিতৰত আজি 20খন বিধানসভা আসনৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে য'ত যদি আমি পূৰ্বৰ পৰিসংখ্যালৈ যাওঁ বিগত নিৰ্বাচনৰ ফলাফললৈ যাওঁ এই 20খন আসনৰ 19খনেই কংগ্ৰেছৰ দখলত আছে গতিকে এইবাৰ তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে যে কি নহওক আমি সকলো যেহেতু নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে লক্ষ্য বা এই মুহূৰ্তত লক্ষ্যটো লোকসভা নিৰ্বাচনে আপোনালোকেও জানে ৰণখন যদিও বা বিধানসভাৰ এই পাঁচ ৰাজ্যত লক্ষ্য কিন্তু লোকসভাৰ আপোনালোকক জনাওঁ যে আজি বা এই মাহত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত যিকেইখন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে সৰ্বমুঠ 83খন লোকসভাৰ আসন আছে সৰ্বমুঠ সকলো সামৰি আৰু মধ্যপ্ৰদেশ আৰু লগতে ৰাজস্থানক যদি আমি পৃথককৈ হিচাপ কৰোঁ তেতিয়া 54খন তাৰ লগত যদি 11খন ছত্তীশগড়ৰ যোগ দিওঁ তাত হ'বগৈ 65খন এনেধৰণে গতিকে এই নিৰ্বাচন যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানেৰে ভৰা হ'ব কোনো সন্দেহ নাই আৰু সকলো পক্ষই প্ৰাক নিৰ্বাচনী যিবোৰ সমীক্ষা ইয়াক লৈ কিছু উৎকণ্ঠাৰ মাজত আছে কংগ্ৰেছো উৎকণ্ঠাৰ মাজত আছে ৰাজস্থানক লৈ বিজেপিও উৎকণ্ঠাৰ মাজত আছে মধ্যপ্ৰদেশক লৈ তেনেধৰণে ছত্তীশগড় আৰু লগতে বাকী ৰাজ্যসমূহৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগবোৰ আছে আজি আমি ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ ৰাজ্যৰ তিনিগৰাকী আলোচকক আমি আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ সমান্তৰালকৈ যিকেইখন ৰাজ্যত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে তাৰে 4খনৰ ৰাজধানীৰ পৰা আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বা আমি যদি তেওঁলোকক কওঁ ইয়াতকৈ অকণমান বঢ়াই কওঁ তেওঁলোকক ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক হিচাপে তেওঁলোকক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেওঁলোকে নিজ নিজ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ বতৰাসমূহ দিব ষ্টুডিঅ'ত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰণেন কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী আছে আপোনাকো স্বাগতম আৰু বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছে জয়পুৰৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নবীন জয়সৱাল ডাঙৰীয়া নবীনজী স্বাগত হে आपका ভোপালৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপেশ জৈন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে দীপেশজী आपका भी স্বাগত হে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতেই আমি হায়দৰাবাদৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মনীষ কুমাৰ মিশ্ৰাক পাম আমি দিল্লীৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শান্তু দাসক পাম আৰু আমাৰ সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তত সঞ্জীৱ প্ৰকাশ আমাৰ আউটপুট এডিটৰ সঞ্জীৱ প্ৰকাশো নিউজ ডেস্কৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আৰু ৰায়পুৰৰ পৰা তাৰ অগ্ৰণী যিখন বাতৰি কাকত হৰিভূমিৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনিল সামাদ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব গতিকে আমি খবৰবোৰ ল'বলৈ যত্ন কৰিম গতিকে প্ৰথমেই ছত্তীশগড়ৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ অকণমান মন আছিল কিন্তু ছত্তীশগড়ৰ যিগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তেওঁ কিছু সময় লাগিব বুলি কোৱাত আমি প্ৰথমে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ গতিকে ৰণেন কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া চমুকৈ মই যদি সোধোঁ আপোনাক 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন তাৰে দুখনৰ আৰম্ভণি ইতিমধ্যে ঘটিছে ভোটদান সম্পন্ন হৈছে মিজোৰামত আৰু ছত্তীশগড়ত 20খনত গতিকে কি দেখিছে ছেমিফাইনেল মানে চাওক আপুনি যদি ছেমিফাইনেল শব্দটো কয় আগতে এনেই মানে নকয় এইবাৰ কিন্তু খুব যুক্ত হৈছে যে ৰাজ্যসমূহত কিবা হ'লে তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিফলন লোকসভাত ঘটিব এইটো মানে সদায় একে নহয় কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে তাৰমানে এইবাৰ তেনেকুৱা এটা যোগাযোগ দেখা গৈছে বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশ আৰু
ৰাজস্থানৰ 25খন লোকসভা আসনেই যোৱাবাৰ 2019ত বিজেপিয়ে পাইছিলে আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ 29খন আসন 29খন আসনৰ 28খনেই বিজেপিয়ে পাইছিলে হয় তে এইবাৰ এই বিধানসভাত যিটো ধৰি লওক ৰাজস্থানত এতিয়া এণ্টি ইনকামবেঞ্চি প্ৰবল হৈছে কিন্তু প্ৰত্যেক মানে মই এনালাইজ বিভিন্ন পৰস্পৰ বিৰোধী কথা আহে কি দুটা কথাত মানে প্ৰায়বিলাক একমত যে আপোনাৰ গেহলট ভীষণ জনপ্ৰিয় তে গেহলট ইজ আ ফেচ মানে ধৰি লওক 37% 35% মানুহে কয় গেহলটক লাগে আৰু বাকী তেওঁৰ লগত কিন্তু অইন নহয় মোদী নিজে তেওঁৰ এতিয়া প্ৰায়বিলাকে পাইছে যে 40% 44% এনেকুৱা ধৰণৰ মানে তাতে দেই আৰু তাতে সাধাৰণতে দুয়োটা অৱশ্যে বেলেগে ক'লে একেলগে ক'লে বহুত বেলেগ হৈ যাব বেলেগকে পিছত আমি গোটেইখিনি ৰাজ্য অনুসৰি আলোচনা কৰিব পাৰিম মধ্যপ্ৰদেশত এণ্টি ইনকামবেঞ্চি বহুত বেছি প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধিতা বহুত বেছি গতিকে খুব ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰম্ভ হৈছে সেইকাৰণে ঘোষণাও কৰিছে বিজেপি দলে আৰু তেওঁলোকে কেন্দ্ৰৰ পৰা নেতা আনি সব দলতে থাকে দেই এইটো মানে কিবা কংগ্ৰেছৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয় যে অন্তৰকণ্ডল কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰো ভীষণে সিদিনানে কোন মন্ত্ৰী মই পাহৰি গ'ল তাৰ মন্ত্ৰী আগতে তেওঁৰ বিজেপি মানুহে মাৰিলে নহয় তেওঁ মুখতে মাৰিলে চিকিউৰিটি গাৰ্ডক তো বহুত বেছি হৈ যায়গৈ সেইবিলাক চম্ভালিবৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়াকৈ 7টা জোনত ভাগ কৰিছে ধৰি লওক 7টা জোনত ভাগ কৰি পেলাই চম্ভালাৰ চেষ্টা কৰিছে যে মধ্যপ্ৰদেশত খুব ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বিজেপিৰ কাৰণে খুব ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু ৰাজস্থানত কিন্তু বিজেপিৰ কাৰণে কাৰণ ৰাজস্থানত আজি 5টা নে 8টা নিৰ্বাচনত মানে 5 বছৰ কংগ্ৰেছ 5 বছৰ বিজেপি 5 বছৰ কংগ্ৰেছ সেইটো এতিয়া মানে ঘূৰুৱাৰ মানে বহুত চেষ্টা কংগ্ৰেছৰ পৰা কৰিছে গোটেই কংগ্ৰেছৰ কিছু মানে আধাৰ বহুতখিনি নষ্ট হোৱা নাই কিন্তু বিজেপি তাতে আগবাঢ়ি থকা যেন মানে আমি যিবিলাক ৰিপৰ্ট পাওঁ তাৰ পৰা তেনেকুৱা লাগে মিজোৰামত বিজেপিক আশা কৰি একো লাভ নাই তেওঁলোকে 40খনৰ 23খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মিজোৰামত গোটেইকেইখন আসনতে আপে 4খন গতিকে মিজোৰামত গোটেইকেইখন আসন খেলিছে কংগ্ৰেছে ZPM আৰু MNF মণিপুৰৰ বিষয়টোৱে MNFৰ পৰিযোৱা দল মণিপুৰৰ বিষয়টোৱে MNFক তেওঁলোকে সেইটো পুৰা মানে তেওঁ এইটো কুকি জো আৰু যে সেইটো পিছে ডিটেইলছ পিছত আমি ক'ব পাৰিম আৰু তেলেংগানাত বিজেপিৰ একো নাই মানে একো নাই শব্দবিলাক ক'লে বেয়া হ'ব মানে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাহ্বানত খেলখন অহা নাই BRS আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত গতিকে আপোনাৰ চাব লগা হ'ল আপুনি যদি যিটো ছেমিফাইনেল কৈছে তাৰ কাৰণে যদি মানে মূল দলবিলাক ভাবে বিৰোধীৰ মুখ আৰু NDAৰ মুখ বিজেপি প্ৰধান দল বিৰোধীৰ প্ৰধান দল কংগ্ৰেছ ৰাজস্থান ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশ এইকেইখনত এই মুখ্য দলবিলাকৰ মাজত হ'ব তাতে মধ্যপ্ৰদেশত মানে খুব ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বিজেপিৰ কাৰণে ছত্তীশগড়ত কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ভাল বুলি মই এতিয়ালৈকে যিমানখিনি গম পাইছোঁ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ভাল বিজেপি ফাইট দিছে প্ৰত্যাহ্বান কিটো আছে প্ৰত্যাহ্বানটো থাকিবই এটা সেয়া আছে আৰু আপোনাৰ ৰাজস্থানত ঠিক আছে ফাইটটো মূল হ'ব মই আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত থকা দুগৰাকী ৰাজনীতিকৰ কাষলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অকণমান আমি ৰাজস্থানৰ বতৰা লৈ লওঁ नवीन जी आप जुड़े हुए हैं राजस्थान में इस बार भी परंपरा प्रतीत होगा कि परंपरा को नकार के लोग फिर से कांग्रेस को मौका देगा देखिए राजस्थान में बड़ा फंसा हुआ चुनाव है आप स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा परंपरा रहेगी या नहीं रहेगी रिवाज रहेगा या रिवाज बदल जाएगा 1993 से पिछले 3 दशक से यही हो रहा है राजस्थान के अंदर हर बार सरकार बदल जाती है एक बार बीजेपी आती है एक बार कांग्रेस आती है राजस्थान में किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं होती है ये 2 ही दल हैं जो राजस्थान में शासन कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 2 बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन चुकी है भाजपा और कांग्रेस से इस बार भी जो सर्वे हैं वो थोड़ा सा कहीं बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं लेकिन ग्राउंड पे क्या होता है ये कहना अभी मुश्किल होगा क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है गहलोत सरकार जिस तरह से जनहित की योजनाओं के ऊपर दांव खेल रही है गहलोत सरकार जो योजनाएं लाई हैं उसमें वाकई कोई योजनाएं काफी अच्छी कही जा सकती है जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना है 25 लाख रुपए अगर वो
हर परिवार को दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, बीपीएल को फ्री मिल रहा है, और एपीएल के जो परिवार है बीपीएल से ऊपर, उनको 850 रुपए के प्रीमियम पर मिल रहा है। तो इस तरह की योजना है। सस्ता सिलेंडर है, जब गहलोत ने सस्ता सिलेंडर किया तो बदले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूरे देश भर में सिलेंडर सस्ता करना पड़ा। तो इस तरह की प्रो पीपल की योजना है, उस पर गहलोत सरकार दाव खेल रही है, और उन्हें उम्मीद है कि वो योजना जनता को पसंद आएगी। 7 तरह की गारंटियां दी है गहलोत सरकार ने, और उस आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने करप्शन को एक बड़ा मुद्दा बनाया है राजस्थान के अंदर। विशेष करके पेपर लीक है, जो परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं राजस्थान के अंदर। ऐसी 10 परीक्षाएं हैं जिसके अंदर पेपर लीक हुए हैं। सरकार ने भी माना है, हालांकि बीजेपी करीब 19 परीक्षाएं ऐसी गिनाती है जिसके अंदर पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक के मामले के अंदर ईडी की कार्रवाई हुई है। राजस्थान के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे भी पूछताछ हुई है। उनके बेटों को भी समन देके बुलाया गया है दिल्ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को एक मामले के अंदर ईडी ने समन दिया है। ईडी कांग्रेस के प्रत्याशियों से भी पूछताछ कर रही है। इनकम टैक्स भी एक्टिव है। तो एक तरफ से बीजेपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है राजस्थान के अंदर, वो करप्शन के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को गरमाने के लिए एक बेरोजगार के जो एक नेता है उपेंद्र यादव, उनको तक इस बार पार्टी से टिकट दिया है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा हाइप दी जाए। अमित शाह आज राजस्थान में आए लंबे समय के बाद। हालांकि अभी वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ज्यादा व्यस्त हैं, और उनका दौरा बना है। जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से मोदी भी नहीं आए और अमित शाह भी नहीं आए थे। आज अमित शाह आए तो उन्होंने वो सारे करप्शन के आरोप फिर से लगाए हैं, जिसका माहौल पहले ईडी बना गई थी। ईडी कार्रवाई कर रही है, और वही अमित शाह करप्शन के आरोप लगातार लगा रहे हैं। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ईडी लगातार वहां पे दबाव डाल रहा है और पूछताछ जारी है, एक के बाद दूसरे को बुलाया जा रहा है नई दिल्ली। तो आप ये बताएं कि बीजेपी के लिए ईडी अगर एक ब्रह्मास्त्र हम इसको मान के चले तो बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होगा आने वाले दिनों में? बहुत कम समय है इलेक्शन में। देखिए, ईडी जो कर रहा है, ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। करप्शन का मुद्दा कहीं ना कहीं उसको हाइप मिलती है, उससे ईडी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। और वही बाद में उन्हीं चीजों को आकर अमित शाह अगर भाषण में कहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ईडी की कार्रवाई कहीं से एक निर्देशित हो रही है। ईडी आती है, पहले वो माहौल बना जाती है, माहौल बनता है, उसी माहौल पर आकर बीजेपी उसको इश्यू बना रही है। तो घेरने की सरकार को पूरी तरह कोशिश है, लेकिन ग्राउंड में क्या होता है लोगों को भी दिख रहा है, वोटर भी समझते हैं कि ईडी कहाँ जा रही है। वो एमपी नहीं जाती है, वो छत्तीसगढ़ लगातार जाती है या दूसरे राज्यों में जाती है। तो वोटर को ये भी समझ में आता है कि सिर्फ ये चुनाव के समय अगर ये कार्रवाई होती है। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान के अंदर, लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से पेपर लीक हुए हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस समय कार्रवाई करना, सिर्फ चुनाव के समय पुराने मामलों को उठाकर लाना, लोगों को उसमें गंभीरता कम नजर आती कि क्या चुनाव के बाद भी इस तरह से एक्टिव रहेगी ईडी, या सिर्फ 25 तारीख को मतदान होने के बाद इन चीजों को भुला दिया जाएगा। तो लोग ये भी कहीं ना कहीं एनालिसिस करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज हो जाएगा, और ईडी ने जो कर दिया है उसको राजस्थान का वोटर इस तरह से मान लेगा और उसी के आधार पर फैसला हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। दीपेश जी हैं भोपाলৰ পৰা আমাৰ সৈতে দীপেশ জৈন, তেওঁ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক। আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। दीपेश जी, मध्य प्रदेश में क्या माहौल है फिलहाल? बिल्कुल राजदीप जी, देखिए मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही माहौल है कि सस्पेंस एक तरीके से, मतदाता चुप है। यहाँ कोई लहर नहीं है कि कांग्रेस की लहर या भाजपा की लहर, ऐसा कुछ नहीं। और ये पूरा जो चुनाव है वो चेहरों का चुनाव है, चाहे मोदी का चेहरा हो या कमलनाथ का चेहरा हो। और इसीलिए 6 महीने पहले केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी कमान संभाल ली थी मध्य प्रदेश में भाजपा के। अमित शाह यहाँ पर पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे थे। तो पीएम मोदी का चेहरा आगे रखकर मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव लड़ रही है, चूंकि उसकी यहाँ पर सरकार है। 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरी थी, कांग्रेस की सरकार गिरी थी। 15 साल बाद कांग्रेस की जैसे तैसे सरकार बनी, लेकिन कमलनाथ नहीं संभाल पाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते यहां पर मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिला, ऑपरेशन लोटस उसको नाम दिया गया। अब जो स्थितियां हैं वो ये है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके चेहरे को पार्टी ने आगे नहीं किया, बतौर सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया, और पीएम मोदी के चेहरे पर ही वोट मांगे जा रहे हैं। खुद पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैं सारी गारंटियां पूरी करने की हूं, उसका
यही कि 2018 में भाजपा चुनाव हारी थी, या हारी न कहें कम सीटें आई थी, क्योंकि कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और सपा बसपा और निर्दलियों के सहारे कमलनाथ ने सरकार बनाई थी। भाजपा भी पूर्ण बहुमत में है, लेकिन इसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान, जो कि लोकप्रिय हैं, जिनकी कई योजनाएं सीधे जनता से जुड़ी हैं, वो जनता के बीच रहने वाले नेता हैं, इसके बावजूद उनके चेहरे को आगे नहीं करिए। उसकी स्ट्रेटेजी भाजपा की यही है कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि फिर सीएम शिवराज को हम रिपीट करेंगे। बजाय इसके भाजपा ने सारे नेताओं को यहां पर उतार दिया, जो सीएम इन वेटिंग हम इनको कह सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, ऐसे बहुत सारे चेहरे उतार दिए। कई सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को भाजपा लड़ा रही है। तो कोशिश यही है, देखिए राजदीप जी, अमित शाह इंदौर आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि आप मध्य प्रदेश जिताइए। इस वक्त भाजपा की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो मध्य प्रदेश जीतना है। अमित शाह ये कह करके गए थे, जो शायद उन्होंने कहीं नहीं कहा होगा, कि आप मध्य प्रदेश जिता दीजिए, 50 साल भाजपा शासन करेगी। तो इस लाइन से आप समझ सकते हैं कि एमपी पोटेंस है और इसीलिए पूरी ताकत यहां पर झोंकी है। यहां की जो राजनीति है इस वक्त जातिगत समीकरणों में उलझी हुई है, कह सकते हैं। और यहाँ पर आदिवासियों पर बहुत ज्यादा फोकस रहा सभी राजनीतिक दलों का। और इसके बाद अगर हम कहें कि कांग्रेस हो या भाजपा, जी SC ST और OBC, SC ST OBC पर पूरी राजनीति यहाँ पर केंद्रित है, ये कह सकते हैं हम। माफी चाहूंगा, कुछ कॉल डिस्टर्बेंस है। तो देखिए यहाँ पर ये SC ST OBC को लेकर के पूरी राजनीति हो रही है। और सबसे एक लाइन, आखिरी लाइन में कहूंगा कि जो दल बदल हुआ, जो प्रत्याशी उतरे हैं, पूरा चेहरा चुनाव उन्हीं के ऊपर है। प्रत्याशी अपने दम पर अगर पार्टी को जिता ले जाएंगे तो जिता ले जाएंगे। जो मतदाता है वो केवल प्रत्याशी का चेहरा देखकर वोट देगा। ठीक है, वही अब मैं पूछने वाला था आपसे, क्योंकि असम के सीएम को मामा बुलाया जाता है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सीएम पहला सीएम होगा जिसको मामा बुलाता, मतलब लोग मामा कहलाते थे वो। तो मामा, वो बोलते हैं कि मामा को वोट नहीं डालोगे आप लोग, मामा को फिर से शासन में नहीं लाना है आपको। बहुत ही इमोशनल एक आह्वान था उनका। तो लोग इस पे कैसे गौर कर रहे हैं? देखिए, जो लाडली बहना योजना है राजदीप जी, वो गेम चेंजर साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में आधी आबादी, जातिगत समीकरणों के अलावा, SC ST के अलावा आधी आबादी यानी महिलाओं पर पूरा फोकस है। और इसीलिए लाडली बहना योजना को लॉन्च किया गया 6 महीने पहले। जब देखा गया कि हिमाचल में योजना लोकप्रिय रही, कर्नाटक में लोकप्रिय रही और पंजाब में लोकप्रिय रही, तो उसके बाद भाजपा की मजबूरी थी। फ्री बीज का भले विरोध करते हैं पीएम मोदी, लेकिन मध्य प्रदेश में 1000 रुपए से शुरुआत हुई। जब कांग्रेस ने 1500 रुपए किए तो फिर सीएम शिवराज ने कहा कि हम 3000 रुपए तक देंगे। तो आधी आबादी को साधने की पूरी कवायद। और इसमें कोई शक नहीं है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के बीच में, बच्चों के बीच में बेहद लोकप्रिय हैं। युवाओं के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री कौशल योजना शुरू की, 8 से 10,000 रुपए उनको देने की शुरुआत हुई, तो इससे युवाओं को अट्रैक्ट किया गया। इस बार भाजपा की कोशिश है कि 2003 के पहले की जो दिग्विजय सिंह सरकार थी उसको मुद्दा बना करके वो कह रहे हैं कि आप क्या वो 18-20 साल पहले का मध्य प्रदेश देखना चाहते हैं। तो एक तरीके से सीएम शिवराज अपनी सरकार की खूबियां गिना रहे हैं, दिग्विजय सरकार, कमलनाथ सरकार की बुराइयां कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही कि सीएम शिवराज इमोशनल अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि विरोधियों ने जब ये मुद्दा उठाया, जब पीएम मोदी आए थे भोपाल, उन्होंने सीएम शिवराज का नाम नहीं लिया था पूरी सभा में, तो सवाल उठे। लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में जब पीएम मोदी आए तो उन्होंने कहा आपके मामा तो बेहद लोकप्रिय हैं। तो मामा शब्द जो है वो सबके दिमाग में क्लिक हो जाता है। और ग्राउंड जीरो पर महिलाओं के बीच में कोई शक नहीं इसमें कि सीएम शिवराज बेहद लोकप्रिय है। ठीक है, फिर से रुख करेंगे आपके पास। मैं एटिया स्टूडियोर मजले आहिब खुजिছো, কিন্তু स्टूडियोলৈ অহাৰ পূৰ্বে আৰু অকণমান সময় মই আপোনালোকক অপেক্ষা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ সতীৰ্থ আমাৰ ND24 আউটপুট এডিটৰ সঞ্জীৱ প্ৰকাশ সংযুক্ত হৈ আছে। খুব কম সময়ৰ বাবে মই সঞ্জীৱক সংযুক্ত হ'বলৈ আহ্বান জনাইছিলোঁ। সঞ্জীৱ, আমি বাকী ৰাজ্যকেইখনৰ কথা পাতি আছোঁ। মিজোৰাম অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। মিজোৰামৰ খবৰ আপুনি কি লাভ কৰিছে অকণমান আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাওক। হয় ৰাজীৱ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, মাত্ৰ 40টা বিধানসভা সমষ্টি, কিন্তু তথাপিও গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিহেতু এই বিধানসভা নিৰ্বাচন 24ৰ ছেমিফাইনেল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বা বিভিন্ন মূৰত চৰ্চা চলিছে। গতিকে ক'বলৈ গ'লে যদিও বা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন কেৱল ছত্তীশগড়ত হৈছে, কিন্তু মিজোৰামত একেটা পৰ্যায়তে 40টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন যিহেতু হৈ গৈছে, ভোটগ্ৰহণ যিটো আজি শেষ হৈছে, গতিকে মিজোৰামৰ পৰা এই ছেমিফাইনেল আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি নিঃসন্দেহে। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এইটো যে আশংকা কৰা হৈছিলে, বিভিন্ন মহলে আশংকা কৰিছিলে যে মণিপুৰৰ যি শেহতীয়া
নাটকীয়া পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ আজিৰ দিনটোত বা এই যি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পিছৰ পৰা প্ৰচাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত পৰিৱেশত বা পৰিস্থিতিত, মিজোৰামৰ পৰিস্থিতিত মণিপুৰৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিব বুলি পেলাই আশংকা কৰা হৈছিলে। যথেষ্ট কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছিলে। এফালে সীমামূৰীয়া ৰাজ্য, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা আছে, আন্তঃৰাজ্যিক সীমা আছে। কিন্তু দেখা গ'ল যে মিজোৰামত অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো আজি সম্পূৰ্ণৰূপে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। আৰু তাৰ উপৰিও আজি দেখা গৈছে যে মিজোৰামত কিন্তু ভোটদানৰ যি হাৰ, সেই হাৰে আজি অভিলেখ কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ এইটো কথা ঠিক যে মিজোৰামত প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনতে যিহেতু অতি শিক্ষিতৰ হাৰ অতি বেছি, মিজোৰাম ৰাজ্যখনত শিক্ষিতৰ হাৰ যথেষ্ট উচ্চত, গতিকে সেইফালৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে তাত ভাল ভোট হয়। কিন্তু আজি আমি শেহতীয়া যি তথ্য আমি লাভ কৰিছোঁ, এই পৰ্যন্ত 77.50% ভোটদানৰ হাৰ বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু এই গোটেই হাৰটো আপডেট হ'বলৈ, এই পৰিমাণটো আপডেট হ'বলৈ আৰু বহু বাকী আছে। পুৱা ঠিক যেতিয়াৰ পৰা ভোটদান আৰম্ভ হৈছিলে, প্ৰথম 4 ঘণ্টাতে 32% অতিক্ৰম কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত ঠিক 3 বজালৈ অভিলেখ গঢ়িছিলে 69% ওপৰলৈ ভোটদানৰ হাৰ উঠিছিলে। গতিকে দেখা গৈছে মিজোৰামত যিহেতু সময় খুব কম, ৰাজদীপ, মিজোৰামত 5 বজালৈকে আচলতে 5 বজাত 75.80% আৰু তাৰপিছত 70.87% আৰু এতিয়া এই মুহূৰ্তত 7 বজাত মই যিটো কথা ক'লোঁ 77.50% ভোটদানৰ হাৰ উঠিছে। গতিকে দেখা গৈছে যে মিজোৰামত যথেষ্ট ভোটদানৰ, আপুনি ধৰি লওক প্ৰায় 80% ওচৰা-ওচৰি হ'বগৈ পাৰে, 80ৰ ওচৰা-ওচৰি হ'বগৈ পাৰে। কাৰণ দুৰ্গম অঞ্চল বহুত আছে, তাৰ পৰা ৰিপৰ্টবোৰ আহোঁতে সময় লাগে কিছু। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে হয়তো 80 বা তাৰ আশে-পাশে হ'বগৈ। হয়, প্ৰায় 30টাৰো অধিক ভোটকেন্দ্ৰ বিভিন্ন সীমান্তৱৰ্তী দুৰ্গম অঞ্চলত বুলি তাৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে দেখা যায় যে মিজোৰামৰ যি প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত কোৱা হৈছিলে যে ইয়াত 3-কোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। কাৰণ ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে মিজোৰাম MNF, ZPM আৰু কংগ্ৰেছে আটাইকেইটা সমষ্টিতে 40টা সমষ্টিৰ 40টাতে তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব থিয় কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে 23টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে, আম আদমী পাৰ্টীয়ে তাত 4টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে, কিন্তু 27গৰাকীকৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আছে। গতিকে 3 ডিচেম্বৰত যিহেতু ভোট গণনা হ'ব, গতিকে ৰাজদীপ গোটেই বিষয়টো হয়তো তেতিয়ালৈ পৰিস্ফুট হ'ব। কিন্তু 3-কোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ যিটো কথা কোৱা হৈছিলে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু শেহতীয়া যি ভোটদানৰ আজিৰ যি হাৰ বিভিন্ন মহলত চৰ্চিত হৈছে যে MNF-এ কিছু মাইলেজ পাইছে বুলি মুহূৰ্তত ক'ব পাৰি। ঠিক আছে, ধন্যবাদ সঞ্জীৱ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনাক মই বিদায়ো দিছোঁ, বেছি সময় যিহেতু নাপাম কথা পাতিবলৈ। ধন্যবাদ সঞ্জীৱ। মই আহিব খুজিছোঁ ৰূপম গোস্বামী আপোনাৰ কাষলৈ, যে আপুনি মিজোৰাম ঘূৰিছে এই নিৰ্বাচনত, গতিকে আপোনাৰ পৰাই জানিব খুজিছোঁ যে বিজেপিয়ে মাত্ৰ 23খনত আপোনালোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, কিন্তু আপোনালোকৰ NDA এলায়েন্সৰ ফালৰ পৰা আমি যদি কওঁ MNF, ZPM এনেধৰণে আছে, গতিকে তেওঁলোকেও কিন্তু 40খনত তেওঁলোকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে, আপোনালোকেও 23খনত। গতিকে কাৰ জৰিয়তে শাসনলৈ কোন আহিব সেইটো বৰ লক্ষণীয় এটা দিশ হিচাপে চৰ্চালৈ আহিছে। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে কি ষ্ট্ৰেটেজি লৈ মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ আশা কৰিছে? স্যাৰ, প্ৰথম কথা যে বিজেপি অবিহনে মিজোৰামত কোনো চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰিব, এইটো একদম ভেৰি ক্লিয়াৰ। বিজেপিক লগত ৰাখিবই লাগিব। আৰু ডেফিনেটলি আপুনি যদি ইয়াৰ আগতে চাই, আমি 2013ৰ পৰা যিটো ভোট শ্বেয়াৰ, 2013ত আমাৰ পইণ্ট ছামথিং আছিল, 2018ত আমি যথেষ্ট গ্ৰ' কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও আমি যথেষ্ট গ্ৰ' হ'ব এইবাৰো। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আমি 23খন আসনত আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি তাৰ 5-6খন চিটটো আমি দখল কৰাৰ কাৰণে আমি হ'ব বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। এই ধাৰণাটো আপোনালোকেতো মেঘালয়ক লৈও কৰিছিল? হয়, যদি কওঁ মেঘালয়ক লৈ কৰিছিলোঁ আৰু মেঘালয়ত আমি প্ৰায় 5-6টা চিটত খুব নেৰ' মাৰ্জিনত আমি হাৰিছোঁ। আৰু কিন্তু মেঘালয়ত আকৌ মুকুল চাংমা কিন্তু একেবাৰে বিধ্বস্ত হৈ গ'ল বিকজ অফ দ্য বিজেপিজ প্ৰেজেঞ্চ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি কিছুমান থাকে ৰাজনীতিত। আৰু এইবাৰ যিখন মই মিজোৰামৰ দেখিছোঁ, মিজোৰামত বিশেষকৈ বহু জেগাত ষ্ট্ৰেইট ফাইট কিন্তু MNF আৰু ZPM-ৰ হ'ব, ষ্ট্ৰেইট ফাইট। কংগ্ৰেছৰ মই প্ৰভাৱ দেখা নাই, কিন্তু এতিয়া মই আপোনাক ধৰক ক'ব পাৰে যে মই বিজেপিটো কংগ্ৰেছৰ ভাল নহয় বুলিয়ে ক'ব, কিন্তু টু বি ভেৰি ফ্ৰেংক, কংগ্ৰেছৰ ভোটটো ZPM-লৈ বহুত শ্বিফ্ট হৈছে। ZPM-এ কিন্তু খুব সাংঘাতিক গ্ৰ' কৰিছে, মই নিজে এইটো মানিবই লাগিব। 8টা চিট আছিল ZPM-ৰ লাষ্ট টাইম, তাৰ আগত ZPM-ৰ এটা চিট আছিল, এটাৰ পৰা তেওঁলোকে জাম্প কৰিছে 8টালৈ 2018-ত, ইফ আই এম নট ৰং।
আৰু এইবাৰ কিন্তু মোৰ হিচাপত আমাৰ মানে খেল ZPM এ দেখুৱাব ZPMৰ কিন্তু মানে ইউথক তেওঁলোকে খুব এট্ৰেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাকী এনেকুৱা নহয় যে MNF দুৰ্বল MNFও যথেষ্ট সক্ৰিয় কাৰণ MNFৰ 26খন আসন আছে তাতে বৰ্তমান চিটিং MLA MNFও বহুত ষ্ট্ৰং আৰু ZPM ইজ গ্ৰয়িং নতুন পাৰ্টি ঠিক আছে মানে কথাটো এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে যে এইবাৰ বিজেপি MNFৰ লগত আছে নে ZPMৰ লগত আছে কাৰণ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মই ৰাতিপুৱাই মই তেখেতৰ প্ৰতিক্ৰিয়াটো চাইছোঁ তেখেতক যেতিয়া সোধা হ'ল যে আপোনালোকেতো NDA এলায়েন্সত আছে তেতিয়া ক'লে কেন্দ্ৰত আমি NDA এলায়েন্সত আছোঁ কিন্তু ষ্টেটত আমাৰ তেনেধৰণৰ কোনো এলায়েন্স হোৱা নাই গতিকে আৰু হয়ও সেইটো পৰিসংখ্যাই কৈছে গতিকে তেওঁ বৰ বিজেপিক লৈ তেওঁ তুষ্ট নহয় তেওঁ ৰুষ্ট এই কথাখিনি আমি গম পাওঁ গতিকে হয়তো সেইকাৰণেই এটা কৌশলগতভাৱে বিজেপি আৰু ZPMৰ এটা তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত হয়তো আমি অংকবোৰ দেখিবলৈ পাম যে কি নহওক সময় লাগিব 3 তাৰিখলৈ মই আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ যাম মই মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কি দেখিছে এই ছেমিফাইনেল আৰম্ভ হ'ল কি দেখিছে চাওক ছেমিফাইনেলটোত আমি এটা বস্তুৱে দেখিছোঁ আপুনি আজি কেইদিনমানৰ পৰা এটা ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হৈছে আপুনি দেখিছে কৰ্ণাটকৰ ইলেকশ্যন দেখিলে হিমাচলৰ ইলেকশ্যন দেখিলে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী এটা ব্ৰেণ্ডিং কৰিব গৈছিলে কিন্তু মুখ ঠেকেচা খাইছে কিন্তু ৰাইজক সদায় তেনে আপুনি তেনেকৈ আপোনাৰ এটা ট্ৰেণ্ডিং চলাব নোৱাৰে আজি তাৰিখত যদি আপুনি ছত্তীশগড়ত কয় ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়া যথেষ্ট এজন একদম মানে খুব কাৰ্যক্ষম এজন মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষকসকলক লৈ পেলাই কওক বা পিছপৰা শ্ৰেণীকে লগত কথা কওক মহিলাসকলক কথা কওক দুখীয়া জনসাধাৰণৰ কথা কওক সকলোৰে লগত ভূপেশ বাঘেল ডাঙৰীয়াই খুব এটা বেলেঞ্চ ৰাজনীতি কৰি আহিছে ৰাজস্থানৰ কথা যদি কয় আপুনি গেহলট ডাঙৰীয়াৰ কথা কয় তেওঁ যথেষ্টভাৱে গোটেই ৰাজস্থানখনক আপোনাৰ এটা ভাল এটা পৰ্যায়লৈ ৰাজনীতিটো লৈ গৈছে মধ্যপ্ৰদেশত আপুনি দেখিছে একেবাৰে মানে জাকে মানুহ আহি পেলাই আপোনাৰ মানে বিজেপিৰ পৰাও আহি পেলাই কৰ্মী নেতা সকলোৱে আহি পেলাই আপোনাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে ইয়ে প্ৰমাণ কৰে আজি সবতছে সিগনিফিকেন্ট কথাটো হৈছে আগতে আপুনি আজি দুদিনমানৰ আগতো এটা বিজেপিৰ আমি হেৰি দেখিবলৈ পালোঁ তেওঁলোকে এতিয়া মোদী ব্ৰেণ্ডিংটো বাদ দিছে তেওঁলোকে কৈছে যে এবাৰ চিনত পদুম ফুলত ইলেকশ্যন খেলিব আজি আপুনি যদি মধ্যপ্ৰদেশত যায় শিৱৰাজ সিং চৌহানক আপুনি আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰজেক্ট কৰা নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ যিবিলাক ডাৰ্ক চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰবিলাকক তেওঁলোকে দেখিছে যে ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে গতিকে এতিয়া CM কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে কিন্তু তাত মানে নিক্ষেপ কৰিবৰ কাৰণে সাহস কৰা নাই আকৌ মোদী ডাঙৰীয়াই মোদী ব্ৰেণ্ডিঙত তাত মধ্যপ্ৰদেশত বা ছত্তীশগড় বা য'তেই কওক মোদী ডাঙৰীয়াৰ তাত মানে নামটো লৈ পেলাই ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰিছে বিপুল প্ৰত্যাহ্বান আছে বিজেপিৰ এই মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছে 100% চৰকাৰ কৰিব ৰাজস্থানত যদিও 93 পৰা এবাৰ কংগ্ৰেছ এবাৰ বিজেপি হৈ আছে বসুন্ধৰা ৰাজে সিন্ধিয়া তেখেতৰ মাজত যিটো ইণ্টাৰনেল ফাইটিং চলি আছে এতিয়া ক'লে তেওঁলোকে শচীন পাইলটৰ কথাও ক'ব কিন্তু কথাটো সেইটো পৰ্যায়ত নাই গতিকে আপুনি উপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া ভালকৈ জানে ইণ্টাৰনেল ফাইটিং যেতিয়া বিজেপিত হয় কি পৰ্যায়লৈকে গুচি যায় গতিকে সেইটো এটা ডিচাইডিং ফেক্টৰ হ'ব বসুন্ধৰা ৰাজে সিন্ধিয়াকো মানে দুৰ্গটো মানে এটা যে কংগ্ৰেছলৈ ছুইফ্ট কৰিব তাত কোনো সন্দেহ নাই ৰাজস্থানত আমাৰ চৰকাৰ হ'ব মধ্যপ্ৰদেশত হ'ব আপোনাৰ ছত্তীশগড়ত হ'ব বিজেপিৰ এতিয়া 1 নম্বৰৰ নিৰ্বাচনৰ তেলেংগানাৰ কথাটো মই আজিয়ে ক'ব নোৱাৰিম আপোনাৰ কাৰণ তেলেংগানাৰ এটা ৰিজনেল সেন্টিমেন্টটো তাত বহুত থাকে মিজোৰামত ৰিজনেল সেন্টিমেন্ট বহুত থাকে মিজোৰামত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আসন যথেষ্ট সংখ্যক আমি পাম আৰু তেখেতে যিটো কৈছে যে আমাক বাদ দি মিজোৰামত চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ মেঘালয়ত এটা সিট থাকিলেও নিজৰ চৰকাৰ বুলি কয় গতিকে সেইটো তেওঁলোকৰ এটা বেলেগ কথা কিন্তু মই আজি তাৰিখত কৈছোঁ যে বিজেপিৰ আজি তাৰিখত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ইডি ইনকাম টেক্সৰ বাহিৰে কোনো মূল ইস্যু নাই ঠিক আছে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আকৌ আপোনালোকৰ কাষলৈ যাম আমাৰ সৈতে যেহেতু ইতিমধ্যে কৈছোঁ दीपेश जी जुड़े हुए हैं नवीन जी जुड़े हुए हैं आप बने रहिए हमारे साथ एक ब्रेक लेंगे हम इस वक्त मैं এটা বিৰতি লম আৰু अनिल जी जुड़ गए हैं रायपुर से एक सीनियर जर्नलिस्ट है अनिल समाज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है बात करेंगे आपके साथ भी बात करेंगे अनिल जी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं फिर से আমি এটা বিৰতিৰ পাছত পুনৰ আহি আছোঁ এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ আমি নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কত কথা পাতি আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে ছত্তীশগড়ৰ পৰা अनिल समात डांगरिया हमारे साथ संयुक्त हुए अनिल जी स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहेंगे
क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा एक राज्य है जहाँ पे भूपेश बघेल जी वहाँ पे सीएम है और उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। कोविड के समय जो उनके लिए कर्ज माफ़ी के साथ साथ ही उनके लिए जो एमएसपी के ऊपर जो काम किया है उसको लेके किसान बहुत खुश थे और अभी बीजेपी को मैदान में उतरना पड़ा और जो कर्ज माफ़ी और साथ ही में जो खास करके ये बोलना चाहूँगा कि एमएसपी के ऊपर बीजेपी ने बहुत बड़ा एक घोषणा कर दिया, उसके बाद कांग्रेस ने फिर से किया और उसी वक्त एन मौके पे महादेव ऐप का जो स्कैम है वो सामने आया। तो ये राजनीति में कैसा प्रभाव अभी दिखाएगा आने वाले दिनों में? खास करके आज 20 सीटों में चुनाव हो चुके हैं, 70 सीटें और भी बाकी है, तो क्या माहौल है छत्तीसगढ़ में? देखिए, आज छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण का चुनाव हुआ जिसमें दुर्ग के 8 विधानसभा और बस्तर के 12 विधानसभा, इसमें अगर हमें एक नज़र दौड़ाए तो अच्छा खासा मतदान हुआ है। जैसे 5 बजे तक जो हमको टेंटेटिव जानकारी मिला है जी। पूरे छत्तीसगढ़ में 20 विधानसभा में 70.8% मतदान हुआ है। और एक बार हम विधानसभा वार अगर देखते हैं तो हमारे बस्तर जिला का जो बीजापुर विधानसभा है जी, यहाँ पे सबसे कम मतदान हुआ क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ 40% मतदान हुआ है। इसके अलावा हम सबसे ज्यादा मतदान की बात करते हैं पूरे 20 विधानसभा में तो भानुप्रतापपुर में 80% मतदान हुआ है। अभी आप मेरे से पूछ रहे थे जी। जो भूपेश बघेल जी जो किसानों के लिए जो कर्जा माफ की बात की है, इसके अलावा एमएसपी वृद्धि की बात की है, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। महादेव ऐप वाली जो बात है जी, इसमें जो आरोप प्रत्यारोप वाली बात है, चूंकि ये जो महादेव ऐप है सऊदी अरब से चल रहा है ना, इसमें इनके ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर में आरोप लगा है और ये बहुत बड़ा आरोप है। इसमें कितनी सच्चाई है, अब कांग्रेस भी जो है भाजपा को काउंटर कर रही है कि आप जो है इनको जो भी आरोपी थे पहले कोई दूसरे थे फिर अभी कोई दूसरे हो गए, इस टाइप का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बावजूद इसके मुझको ऐसा लगता है कि इस चुनाव में महादेव ऐप को लाके बीजेपी वाले बहुत बड़ा दांव खेले हैं, तो इसमें कुछ ऊपर नीचे होने की स्थिति बन रही है। अब इसमें कितने इसमें सफल होते हैं भाजपा वाले, ये 3 दिसंबर को मतगणना के बाद क्लियर होगा। जी। लेकिन ये बताएं आप कि भूपेश बघेल जो कि आपने जैसे कि बोला कि और हमने भी बोला कि किसानों के कर्जा माफ़ी जो है, साथ ही में ये हम जरूर बोलना चाहेंगे कि एमएसपी पहले जो भाजपा और मोदी जी पूरे देश भर में 1800 धान का जो 1800 रुपया उसमें एमएसपी की घोषणा की थी, उसके बावजूद वहाँ पे भूपेश बघेल ने उसको तकरीबन वहाँ पे 2500 रुपया किया। तो उसके बाद देखा गया कि अभी भाजपा वाले मैदान पे उतर रहे हैं और तकरीबन 3100 रुपीज़ वहाँ पे एमएसपी की बात कर रहे हैं और साथ ही में कांग्रेस बोल रहे हैं कि नहीं, भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि नहीं हम 3200 रुपये देने के लिए तैयार है। तो ये जो दांवपेच चल रहा है वहाँ पे, तो किसानों के मन में, आम नागरिकों के मन में इसका प्रभाव कैसा होगा, संक्षेप में बताएं। देखिए, दोनों ओर से अगर देखा जाए तो किसानों को दोनों पार्टी से फायदा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टी उनको एमएसपी ज्यादा दे रही है। इसके अलावा अगर कर्ज माफी की बात है तो कर्ज माफी जो है कांग्रेस सरकार जो पूर्व में थी, भूपेश बघेल की सरकार जो थी, वो जो 2 प्रकार के कर्ज होते हैं, एक आपके जो अंशकालिक और एक दीर्घकालिक। तो पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में भूपेश बघेल जी ने वादा किया और किसानों को उस वादा को तत्काल सरकार में आते ही उसको पूरा किया, लेकिन इसमें यह हो गया कि दीर्घकालीन जो ऋण है उसकी माफी नहीं हुई है। केवल अंशकालिक ऋण जो धान लेते हैं किसान, उसमें जो कर्ज लिए रहते बीज और खाद का, उसका वो ऋण माफ किए। और इसके अलावा बाकी जो ऋण है, चाहे वो ट्रैक्टर लोन हो चाहे अन्य भी जितने भी कृषि लोन है दीर्घकालिक ऋण,
ये ऋण जो है इनका माफ नहीं हुआ। तो उसको इसमें भी बीजेपी प्रयास किया है, चाहे वो आपका 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदी का हो, चाहे इनको जो है 3200 रुपया जो है धान का जो MSP जो रेट जारी किया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक अच्छा योजना लाया है, 12,000 रुपए जो है साल का प्रति विवाहित महिला को। ऐसे बहुत सारे मतलब मामले लाए हैं, मुद्दे लाए हैं दोनों पार्टियां। तो मुझको ऐसा लगता है कि सरकार किसी की भी बने, फायदा जो है मतदाताओं को होना है, किसानों को होना है। वो तो होना ही है, बिल्कुल होना है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, सबसे बड़ा दांव कौन खेल रहा है? मतलब सबसे बड़ा ऑफर किसकी तरफ से है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो तो मुझको ऐसा लगता है कि ये कर्ज माफी वाली जो बात है कांग्रेस की, ये इनका मास्टर स्ट्रोक है। बावजूद मुझको ऐसा लगता है कि भाजपा जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें महिलाओं को लिए हैं और युवाओं को लिए हैं, इसके अलावा और भी मुद्दे हैं। तो मुझको ऐसा लगता है दोनों जो है 50-50 के चांस है, नेक टू नेक फाइट हो रहा है। पलड़ा किसका भारी है ये कहना भी उचित नहीं लगता। नेक टू नेक फाइट हो रहा है। बिल्कुल ठीक बोले आप। लेकिन आपको ये भी बता दूं, जी बताएं। जी नेक टू नेक फाइट हो रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जी बस्तर में जो है हमारे छत्तीसगढ़ का जो बस्तर के 12 विधानसभा है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत रहा। अगर हम विधानसभा वार अगर हम देखें, नजर दौड़ाए, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, भानु प्रतापपुर जो है वो भी एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो 80% मतदान हुआ है। इसके अलावा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर है। यहाँ पूरे प्रदेश में 12 विधानसभा में सबसे कम मतदान हुआ है, 40.98%। इसके अलावा एक और नक्सल प्रभावित क्षेत्र अंतागढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी 70.72% मतदान हुआ है ना। और इसके अलावा बस्तर विधानसभा ये नक्सल प्रभावित नहीं है, आंशिक नक्सल प्रभावित है, इसमें भी 71+ मतदान हुआ है। ठीक है। इसके बाद चित्रकूट विधानसभा जहां पे हमारे PCC चेयरपर्सन दीपक बैद जी का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर भी 70.36% मतदान हुआ है। दंतेवाड़ा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, एक लोगों का मतदाताओं का एक सपोर्ट है, उनको अपना सरकार चुनना है, तो इसलिए मतदाता लोग सभी मतलब वहाँ पे नक्सल प्रभावित इलाका हो या नक्सल प्रभावित इलाका ना हो, सब तरफ से आ रहे, 2-1 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको छोड़ के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, फिर से कभी आपसे मुलाकात होगी और मैं जरूर चाहूँगा कि एग्जिट पोल के शाम आप हमसे जुड़ें और चुनाव के जो नतीजे आएंगे उस दिन भी जुड़े। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आमी जेहेतु विदाय দিব লাগিব আৰু এজনক, গতিকে नवीन जी आपसे भी विदा लेना है, लेकिन उससे पहले राजस्थान में मतलब क्या नज़ारा क्या होगा? बहुत शादी वगैरह ये माहौल एक था, तो इसलिए चुनाव थोड़ा पीछे कर दिया गया, तो माहौल क्या होगा अभी संक्षेप में बताया। राजस्थान में 23 तारीख की घोषणा की गई थी, लेकिन शादी के कारण से आगे बढ़ाकर 25 तारीख को दिन का दिन कर दिया गया है। अभी तक कांग्रेस के बड़े नेता राजस्थान में लगातार आमद दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ चुके हैं, प्रियंका गांधी आई है, मगर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अभी तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में व्यस्त है, क्योंकि वहाँ वोटिंग पहले होनी है। छत्तीसगढ़ में जैसे कि एक दौर की हो गई और 17 तारीख को खत्म हो जाएगा मध्य प्रदेश में, उसके बाद उनके दौरे यहाँ पर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से माहौल एक बार फिर बदलेगा। गहलोत सरकार अपनी गारंटी के ऊपर बनी हुई है, वो लगातार कर रही है। 3 स्टेट हैं जो हम अगर बोले हिंदी बेल्ट अगर बोले 3 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और छत्तीसगढ़। तीनों स्टेटों में अभी भी जो मोदी मैजिक है वो कायम है। लोकल लीडर्स को छोड़ के मोदी के चेहरे को देखते हुए लोग मतदान के लिए आएंगे, बीजेपी के सपोर्ट में आएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखिए, बीजेपी ने राजस्थान के अंदर जो प्रयोग किया है, वसुंधरा राजे पिछली 2 बार से मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने लीड किया है कैंपेन को, उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली और परिवर्तन यात्रा के बाद परिवर्तन हुआ है और बीजेपी वापस सत्ता में आई है। लेकिन इस बार वसुंधरा राजे को पीछे रखा गया है। 4 परिवर्तन यात्रा निकाली गई अलग अलग हिस्सों के अंदर, एक साथ में वो मैसेज देने की कोशिश की कि कोई एक परिवर्तन यात्रा, कोई एक लीडर ऊपर नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सभा करते रहे यहाँ पर, तो वसुंधरा राजे को बोलने का मौका नहीं दिया गया, मंच पर उन्हें नजरअंदाज किया गया। इसके बावजूद कहीं ना कहीं चर्चा होती रही कि राजस्थान में जैसे कि कई सर्वे हैं, वो मुख्यमंत्री पद के लिए अगर राजस्थान में किसी को बड़ा नेता बताते हैं भाजपा से, तो वसुंधरा राजे होती है। सबसे ज्यादा परसेंटेज उनको मिलता है, लोग सर्वे में पसंद करते हैं। चर्चा उनकी थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा के अंदर फिर ये स्पष्ट कहा कि राजस्थान के अंदर चेहरा कमल का फूल होगा, कोई दूसरा चेहरा नहीं होगा। ये साफ मैसेज देने की कोशिश थी कि वसुंधरा राजे को वो सीएम फेस मानकर नहीं चले, पार्टी उनको कहीं प्रेजेंट नहीं कर रही है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमसे, इतने समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि एग्जिट पोल के शाम हो या नतीजे के दिन आपसे बिल्कुल मुलाकात करने की कोशिश करेंगे और आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दीपेश जी, आप थोड़ी से जुड़े रहिए हमसे, हम बात करेंगे आपसे, एक बार और जाएंगे आपके पास और बाकी जो आलोचक हैं उनके पास भी जाएंगे। तार आगत আৰু এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ। এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ পৰ্যবেক্ষণ। এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু সংযুক্ত হৈ আছোঁ, আমি জয়পুৰৰ পৰা নবীন জয়ছোৱাল আছিল, তেওঁক ইতিমধ্যে বিদায় দিছোঁ। আমাৰ সৈতে আছিল অনিল সামাদ ডাঙৰীয়া, তেখেত আছিল ছত্তীশগড়ৰ পৰা, ৰায়পুৰৰ পৰা, তেখেতক আমি বিদায় দিছোঁ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আৰু দুগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সংযুক্ত হৈছে। নতুন দিল্লীৰ পৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শান্তু দাস আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। শান্তু দাস, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ সৈতে আন এগৰাকী ज्येष्ठ সাংবাদিক মনীষ কুমাৰ মিশ্ৰ হায়দৰাবাদৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে। মনীষজী, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। মই দীপেশ জৈন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে, তেওঁ আমাৰ পৰা বিদায় ল'ব। বিদায় লোৱাৰ পূৰ্বে দীপেশ জৈনক মই সুধিব খুজিছোঁ, दीपेश जी, जैसे कि मैंने अभी पूछा कि नवीन जी से पूछा कि मोदी मैजिक अभी भी कायम है और मैनिफेस्टो कितना कारगर साबित हो रहा है बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में? देखिए जी, राजदीप जी, जनता ऐसी हो गई है कि वो सिर्फ ऑफर देख रही है। आपकी सरकार ने पहले क्या किया, आपकी पार्टी ने जिसको आपने वोट दिया उसने क्या किया, जनता वो सब भूल जाती है और अब उसकी नजर ये रहती है कि नई पार्टियां जो पार्टी वो हमें नया क्या देने वाली है। तो निश्चित तौर पर कर्ज माफी के वादे पर कांग्रेस ने 2018 का चुनाव लड़ा था और उसकी सरकार बनी भी थी, कुछ सीटें कम रह गई थी, लेकिन कर्ज माफी नहीं हुई। कई किसान जो थे वो डिफॉल्टर हो गए और इससे किसानों में नाराजगी भी थी, नो डाउट ये हुआ था। अब जो मैनिफेस्टो की बात है, कांग्रेस अपना वचन पत्र जारी कर चुकी, वचन कह रहे हैं, वहीं भाजपा का संकल्प पत्र आना अभी बाकी है। तो जैसे छत्तीसगढ़ में एक झलक जरूर दिखी, भाजपा ने वहां पर संकल्प पत्र जारी किया और एमएसपी की जो बात थी, नो डाउट कांग्रेस ने यहां पर पहले दांव चल दिया है। यहां पर कांग्रेस ने कहा कि हम 2500 से 3000 रुपए अब गेहूं का एमएसपी कर देंगे अगर हमारी सरकार बनती है। तो भाजपा को उसका तोड़ ढूंढ करके लाना पड़ेगा। भाजपा का पूरा जोर रहेगा कि वो कितना बेहतरीन, कितना शानदार अपना संकल्प पत्र लेकर आती है, क्या वो ऑफर देती, क्या वादे करती है। लेकिन राजदीप जी, जो सबसे बड़ी बात है वो चुनाव में कि जनता किसी एक फैक्टर पर वोट नहीं देने वाली। केवल वो मोदी के चेहरे पर वोट नहीं देगी, केवल शिवराज के चेहरे पर या कमलनाथ के चेहरे पर वोट नहीं देगी, वो घोषणाओं पर भी वोट नहीं देगी। ऑफर देखेगी, प्रत्याशी का चेहरा भी उतना गौर से नहीं जी, वो ऑफर देखेगी कि कौन हमें क्या ज्यादा दे रहा है। तो वही बातें जो कहा, लाडली बहना योजना गेम चेंजर है, लेकिन किसान एक बड़ा मुद्दा है, एससी एसटी ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे या फिर ओबीसी को जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस यहां पर उठा रही, तो ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन इसके सिमिलर जो मोदी मैजिक की आपने बात कही, मोदी का चेहरा बिल्कुल है, लेकिन 18 में नहीं चला था, 19 में आप देखिए 29 में से 28 सीटें भाजपा को मिलती। तो लोकसभा चुनाव के लिए वो मोदी को प्रेफर करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कई सीटों पर मध्य प्रदेश में दल बदलू चुनाव लड़ रहे हैं, कई निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक बात मुझे बताइए संक्षेप में, ये बात 30 से 50 सीटें ऐसी हैं जी। एक बात बताइए, संक्षेप में बताइए कि जैसे कि हमने बोला कि राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मध्य प्रदेश में हो, चुनाव कांग्रेस ने जीत लिया, लेकिन 6 महीने के अंदर जो लोकसभा चुनाव हुए उस वक्त जो 2019 में हुआ, तो राजस्थान में बिल्कुल ही क्लीन स्वीप हो गया बीजेपी का, 25 में से 25,
मध्य प्रदेश में 29 में से 28 और छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 9। तो ये फिर से वहां पे ऐसा ही माहौल बनने वाला है क्या? दिपेश जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ बताएं। हाँ जी, तो देखिए बहुत कुछ इस चुनाव के नतीजों से तय होगा कि क्या, क्योंकि इस बार मोदी जी का चेहरा आगे है। लोकसभा चुनाव में नो डाउट यूपी जब सरकार थी तब भी भाजपा को एमपी से बहुत अच्छी सीटें मिलती रही हैं। तो मोदी जी का मैजिक है नो डाउट लोकसभा के लिए। केंद्र सरकार के तौर पर व्यक्ति मोदी जी को पसंद करता है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं, या फिर जो खिचड़ी जो गठबंधन बनता है उस पर उसको भरोसा नहीं है। एमपी का जो मतदाता है, एक स्लोगन चला था 18 के चुनाव में कि वसुंधरा तेरी खैरने या मामा तेरी खैरने, मोदी जी वसुंधरा तेरी खैरने या मामा तेरी खैरने, मोदी जी से बैर नहीं। तो ये चीजें, लेकिन इस बार मैं कहूंगा आपको एक चीज कि यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा जरूर उठा था सनातन को लेकर, जो स्टालिन के बेटे का बयान आया था, लेकिन अब वो भी बात नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। केवल जो दल बदलू हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जो सपा बसपा और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रभावित करेंगे, क्योंकि कई सीटें ऐसी जहां पर बहुत कम मार्जिन से हार जीत होगी। तो ये चुनाव इसलिए ज्यादा फंसा हुआ है कि आप एग्जैक्ट पता नहीं कर पाएंगे, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, कहीं चतुष्कोणीय मुकाबला है। ऐसे में किसका नुकसान होगा ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपेश जी हमसे जुड़ने के लिए, आभार व्यक्त करते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शान्तु दासको पाइছোঁ এই মুহূৰ্তত, নতুন দিল্লীৰ পৰা এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তেখেত। মই সময় বেছি নাই হাতত, আপুনি ক্ষমা কৰিব, তৎসত্ত্বেও আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে 5 ৰাজ্যক আপুনি কেনেধৰণে দেখিছে, ছেমি ফাইনেলখন কেনেকুৱাকৈ আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰে? হয়, সব যদি আমি দেখোঁ মানে বিভিন্ন ৰাজ্যত যে 5টা ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন যদি আমি চাওঁ, হয় নিশ্চিতভাৱে মানে এইটো এটা ছেমি ফাইনেল আমি ক'ব পাৰোঁ, যিহেতু আমি অহা বছৰ আমাৰ লোকসভা ইলেকশ্যন আছে। আৰু যিমানখিনি যদি আমি দেখোঁ যে বিভিন্ন ৰাজ্যত আপুনি দেখিব পাৰি আছে যে দুটা পাৰ্টিয়ে লাইক আপোনাৰ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজতে যুঁজটো হ'ব। আৰু মিজোৰাম এৰি মানে মিজোৰামত আপোনাৰ দেখা গ'ল যে মানে মিজোৰামত মাল্টি কৰ্ণাৰ কণ্টেষ্ট হ'ব, যিহেতু আজি নিৰ্বাচন হৈ গৈছে মিজোৰামত। বাকী আপোনাৰ বাকী কেইটা ৰাজ্যত আপোনালোকে মানে চাব পাৰিব যে যুঁজটো কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজতে হ'ব। হয়, मैं আকৌ আপোনাৰ কাষলৈ শেষত এবাৰ যাবলৈ যত্ন কৰিম। मनीष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं हैदराबाद से। तेलंगाना के बारे में बताएं, तेलंगाना में क्या होगा? केसीआर बने रहेंगे सीएम? पैनल में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तेलंगाना में मैं अभी हैदराबाद में बैठा हुआ हूँ और हैदराबाद का मौसम जो है वो बहुत खुशगवार है जी। हल्की हल्की ठंड है, सुबह शाम हल्की हल्की ठंड, दिन में कभी धूप, दिन में कभी बादल। लेकिन यहाँ का जो राजनीतिक माहौल है वो अभी बहुत ही अधिक गर्माया हुआ है जी। सीएम केसीआर जहाँ तीसरे टर्म के लिए कोशिश कर रहे हैं, वही कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि सीएम को कैसे हटाया जाए। कुछ दिनों पहले तक बीजेपी फाइट में थी कि वो केसीआर को रिप्लेस कर सके, लेकिन अभी का जो माहौल दिख रहा है इसमें ये थोड़ा सा बीजेपी बैकफुट पे दिख रही है। बीजेपी का जो स्थान था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ले लिया है। अभी केसीआर पूरी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अगला टर्म भी ले लें। ये तीसरा टर्म होगा उनका, अगर वो जीतते हैं तो 2 टर्म वो बहुत आसानी से तेलंगाना आंदोलन की पीठ पर सवार होकर उन्होंने सत्ता हासिल की थी तेलंगाना में जी। 2 बार बहुत आसानी से जीत गए। ये तीसरा टर्म के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। बहुत अधिक चुनौती उन्हें अभी नहीं है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं जी। कांग्रेस के रेवंत रेड्डी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पे, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, पूरा रिसोर्स लगा रहे हैं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है केसीआर को चुनौती देने के लिए, केसीआर को हटाने के लिए। लेकिन ये क्या होता है रिजल्ट, ये तो आने वाले समय में केसीआर वहाँ के सीएम है। मैं भी तकरीबन 1 साल रहा हैदराबाद में। केसीआर वहाँ के सीएम है और उनके खिलाफ परिवारवाद का जो अभी एलिगेशन आया हुआ है कांग्रेस की तरफ से कि ये अपने परिवार को लेके, परिवार को समेट के राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे,
और इसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि केसीआर को क्यों लोग फिर से सीएम के रूप में देखना चाहेंगे? अगर इतना एलिगेशन है, इतना चैलेंजेस है, बावजूद उनको क्यों चुनौती नहीं है? आपने जो बोला, जी देखिए, अभी ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जो मेन आरोप लगा रही है रूलिंग भारत राष्ट्र समिति पार्टी पे या चीफ मिनिस्टर केसीआर पे, उसमें सबसे प्रमुख जो आरोप है वो परिवारवाद का है। केसीआर के परिवार से केसीआर के पुत्र केटी रामा राव, उनकी एक और भांजे हैं टी हरीश राव, वो भी राजनीति में है। केसीआर की सुपुत्री कविता, वो भी राजनीति में है। तो कहीं न कहीं ये आरोप तो है कि 3 से 4 लोग उनके परिवार से हैं। लेकिन जब इन आरोपों की सत्यता की बात करें तो जहां जहां क्षेत्रीय दल किसी भी राज्य में जहां जहां वो शासन में है, क्षेत्रीय दल के जो प्रमुख होते हैं उनके परिवार से एक से अधिक तकरीबन हर जगह पे राजनीति में है लोग। आप नॉर्थ में जाएं तो बिहार, आप नॉर्थ में जाएं, आप अभी राजस्थान में चुनाव हो रहा है तो वहां के मुख्यमंत्री के बेटे भी चुनाव में हैं। आप बिहार में जाएं, आप जाएं उत्तर प्रदेश में, वहां भी कहीं ना कहीं जो भी सत्ता में रहते हैं, जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, उनके प्रमुख के भाई बहन तमाम रिश्तेदार राजनीति में रहते हैं। मुझे ये बताया, समय ज्यादा नहीं है, माफी चाहूंगा, समय ज्यादा नहीं है, माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे अंत में ये बताया, आप बहुत ही कम समय में ये बताने की कोशिश कीजिएगा, समय बहुत ही कम है, माफी चाहूंगा, कि दंग तो बीजेपी भी मार रहे हैं केसीआर को, उस तरफ दूसरी तरफ कांग्रेस भी उसको दस रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो लोकसभा चुनाव होंगे तब केसीआर का पक्ष क्या होगा, कुछ आभास? जी, अभी तो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव हमें देखना ज्यादा जरूरी होगा। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है तो लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि राज्य में भले ही कोई भी हो, केंद्र के लिए मोदी चाहिए, ये यहाँ के लोगों का भी मानना है। कुछ समय पहले तक यहाँ के लोग तैयारी कर रहे थे कि राज्य में भी मोदी को लाया जाए, यानी मोदी की पार्टी को लाया जाए। लेकिन अभी पिछले 2-3 महीनों में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपनी टीम बदल ली और इसका नुकसान बीजेपी को है और कहीं न कहीं एक कांग्रेस को वॉकओवर मिल गया। कांग्रेस अभी दूसरी पार्टी बन के उभर जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिश्रा जी, आप जुड़े हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मुलाकात होगी, फिर से बातचीत करेंगे। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। আমি আকৌ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত থকা ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া, মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী আৰু ৰণেন কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ আমি শেষৰ মন্তব্য ল'বলৈ আহিম। আজি অকণমান দীঘলীয়া পেনেল, আপোনালোকেও জানে, গতিকে মই ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত থকা সন্মানীয় আলোচকসকলৰ ওচৰতো মই অকণমান ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যে আজি মই বেছি সময় দিব পৰা নাই, সকলোকে সময় দিবলগীয়া হৈছে। বিৰতিৰ পাছত মই আপোনালোকৰ কাষলৈ আহি আছোঁ। এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আমি শেষ অংশলৈ উভতি আহিছোঁ। ছেমি ফাইনেলৰ কথা পাতি আছোঁ, মহাৰণৰ পূৰ্বে, 24ৰ মহাৰণৰ পূৰ্বে। ৰণেন কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, শেষ মন্তব্য, উপায় নাই। যিটো মানে কৈছোঁ নহয়, আচলতে ৰাজ্যত মই প্ৰথমে যিটো কৈছিলোঁ সেইটোৱে যে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনটো একেবাৰে হুবহু ধৰণে লোকসভাত প্ৰতিফলিত হয় এনেকুৱা কোনো কথা নাই। কিন্তু এইবাৰ মানে যিহেতু দেখা গৈছে যে কেইবাখনো দেখি পালে, আৰু তাৰ আগতে আপোনাৰ RSSৰ নিজৰ মুখপত্ৰত, অৰ্গেনাইজাৰত বা জগন্নাথৰ নিচিনা এজন প্ৰখ্যাত হিন্দুপন্থী বুদ্ধিজীৱী, যিখন স্বৰাজ্যৰ এডিটৰিয়েল ডিৰেক্টৰ, তেওঁলোকে কৈছিলে যে এইটো মোদী মেজিকটো কমি আহিছে আৰু অকল মানে হিন্দুত্বৰে তাৰমানে কাম নহয়, মোদী মেজিকেৰে কাম নহয়, মানে অকল সেইটো নহয়, তেওঁ এটা ফেক্টৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু অকল সেইটোৱে কাম নহয়। গতিকে মানে অকল সেইটোৰে, যেনেকৈ 2014 চনত সকলোতে আপুনি চুইপ কৰি লৈ গুচি গৈছে, ঢৌ, একদম ঢৌ, মোদী ঢৌ আছিলে। গতিকে সেই ঢৌৰ এওঁলোকেও ধুনীয়া বৰ সুন্দৰকৈ কৈছে যে কথাটো আচলতে তেনেকুৱা হ'ব বুলি কোনো কথা নাই, কিন্তু কিবা এটা কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান মানে আহিছে, আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বানটো হিন্দী বলয়ত খুব হিন্দী বলয়ত
জোৰদাৰ হৈছে মানে জোৰদাৰটো হৈছে মানে ধৰি লওক আগৰ নিচিনা এনেকুৱা লাগিছে যে মহতিয়াই নিব নোৱাৰে যেনেকৈ 54খন আসনৰ 52খন মহতিয়াই লৈ গুচি গৈছিলে সেই তেনেকুৱা পূৰ্বাভাস নাই যদি তাৰ মাজত কিবা অলৌকিক কাণ্ড হৈ যায় আমি নাজানো তেনেকুৱা কোনো পূৰ্বাভাস আমি দেখা নাই ঠিক আছে ধন্যবাদ মই মীৰা বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ মই এটা কথাই কৈছোঁ মোদী মেজিক যে এতিয়া নাইকিয়া হৈছে সেইটো মোদী ডাঙৰীয়াই ভালকৈ বুজি পাইছে আপুনি দেখিছে তেওঁলোকে আৰু হিন্দু আৰু ভগৱানৰ নাম লৈ যে খুলিব নোৱাৰে কৰ্ণাটকত যেনে বজৰংগ বলি কথা ক'লে চাফা হৈ গ'ল নোৱাৰিলে গতিকে এতিয়া ভালকৈ বুজি পাইছে হিমাচলত জে পি নাড্ডাৰ নিজৰ জেগা তাতো একদম বেয়াকৈ হাৰিলে তেওঁলোকে গতিকে এতিয়া বুজি পাইছে যে হিন্দুত্ব এই মেজিক এইবিলাক দি নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইবাৰ এটা চবতছে ডাঙৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে যে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ মোদী ব্ৰেণ্ডিঙে নেখেলে পদুম ফুল ফুলাব লাগিব বুলি খেলিছে তাৰমানে মোদী যে গ্ৰাফটো ডাউন হৈছে এইটো ভালকৈ জানে আগতে আপুনি আহোঁতে দোকানত দেখিব ক'ৰবাত মোদীয়ে ভাইঅ'ৰ বেহেনো বুলি ক'লে ৰখি যায় এতিয়া নুশুনাই এতিয়া মানুহে এইবিলাক কথা নুশুনা হৈছে মানুহে বুজি পাইছে যে চৰকাৰখনে বাকী বিজ্ঞাপনেৰে দেশ চলাইছে চবতছে ডাঙৰ কথাটো যুৱ প্ৰজন্মই বুজি পাইছে মহিলাই বুজি পাইছে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ নামত কৈ আজি তাৰিখত যদি RTI আপুনি কৰি চাই তেওঁলোকে এই 9টা বছৰত 25 লাখ কোটি টকা তেওঁলোকে ডাঙৰ বিজনেছমেনৰ ঋণ মাফ কৰি দিলে কিন্তু বাকী দুখীয়া মানুহ দুখীয়া হৈ গৈ আছে এই আঁচনিৰ ওপৰত চলি আছে এইটো কথা ৰাইজে বুজি পাইছে তো কংগ্ৰেছে যিটো মেনিফেষ্টো লিখে কংগ্ৰেছে যিটো আপোনাৰ চাওক আজি ৰাজস্থানত 500 টকা চিলিণ্ডাৰ দি আছে বিজুলী ফ্ৰী দিম বুলি কৈছে দি আছে এওঁলোকে 300 ইউনিট ফ্ৰী দিম বুলি কৈ পেলাই চৰকাৰলৈ এতিয়া আকৌ স্মাৰ্ট মিটাৰ বহাই পেলাই চবতে মাধমাৰ মাৰিছে গতিকে বাকী ফাঁকি আৰু বিজ্ঞাপনৰ চৰকাৰৰ আৰু বেছি দিন নাই গতিকে পৰিৱৰ্তন হ'ব আমাৰ 3খনতো এবছলিউট কংগ্ৰেছে মেজৰিটি লৈ চৰকাৰ কৰিব বাকী মিজোৰাম আৰু তেলেংগানাতো আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিৱেশ ৰচনা হ'ব ঠিক আছে ৰূপম গোস্বামী ডাঙৰীয়া শেষত নাও বৰিলেও টিঙৰ পৰা যে নানামে আৰু মংগললাল কি হচিন স্বপ্নে দেখি থাকিলে আমি বেয়া নাপাওঁ এইটো আমি ভালেই পাম কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে ৰাজস্থানত বিজেপি চৰকাৰ আহি আছে তাত আৰু কোনো ছেকেণ্ড থট নাই মধ্যপ্ৰদেশত আমি 18 বছৰ শাসন কৰাৰ পিছত তুমুল এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব এতিয়া ছত্তীশগড়ত মাধৱ যিটো এপ যিটো মহাদেৱ এপত যিটো শেহতীয়া যিটো স্কেণ্ডেল ওলালে যে চৌদি আৰবৰ পৰা য'ত 300 কিমান কোটি 508 কোটি টকা দিয়াটো গতিকে তেখেতসকলে যে সদায় দুৰ্নীতি আৰু কৰাপশ্যনেই গোটেই দেশখন অতদিনে অন্ধকাৰ এই কথাবিলাক স্পষ্টতা হৈছে এই কথাবিলাক আগতেও জানিছিল জনসাধাৰণেও জানে কিন্তু তেওঁলোকৰ এতিয়া নেতৃত্ব আজি কোনে নেতৃত্ব দিব তেওঁলোকৰ নেতৃত্বৰ অভাৱ আজি অসমতে চাওক তেওঁলোকৰ কোন নেতা তেওঁলোকৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া এটা কথা ক'ব ৰকিবুল হুছেইনে এটা কথা ক'ব ইফালে সভাপতিয়ে এটা কথা ক'ব গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক জনসাধাৰণে দেখি আছে গমি পিটি আছে মই আপোনাক কৈছোঁ যে এইখন ছেমিফাইনেল বহুত কৈছে ইয়াৰ আগতো কিন্তু আমি এই 5খন ৰাজ্যত এখনতো আমাৰ চৰকাৰ বনাব পৰা নাছিলোঁ তৎসত্ত্বেও কিন্তু আমি ফাইনেলত জিকিলোঁ গতিকে বিজেপি এটা এনেকুৱা দল ছেমিফাইনেলত হাৰিও কিন্তু ফাইনেল জিকে ঠিক আছে মই শান্তু দাস একেবাৰে সংক্ষেপে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ শেষত কি ক'ব খুজিব গোটেই নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটৰ ওপৰত একেবাৰে শেষত হয় মই ইমানখিনি ক'ম যে মানে কি আপোনাৰ হ'ব যে মানে 5টা ৰাজ্যত কি হ'ব নিশ্চিতভাৱে মানে মিজোৰামত আপোনাৰ যুঁজটো আপোনাৰ MNF ZPM আৰু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত হ'ব ৱেৰেজ আমি যদি তেলেংগানাত যদি চাওঁ তেনেহ'লে এইটো প্ৰতিদিনতো আপোনাৰ বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু BRSৰ মাজত হ'ব আৰু বাকী কেইটা ৰাজ্যত আপোনাৰ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত হ'ব আৰু চবতছে ডাঙৰ কথা হ'ল যে মানে এই নিৰ্বাচনত আমি এটা বস্তু দেখিছোঁ যে মানে নেক টু নেক গৈ আছে বাকী কেইটা ৰাজ্যত ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে তাৰ দুন্দুভি বাজিছে মিজোৰামত 40খন বিধানসভা আসন আছে তাৰ গোটেইকেইখন আসনতে নিৰ্বাচন সম্পন্ন হৈছে ছত্তীশগড়ৰ 90খনৰ ভিতৰত 20খনৰ নিৰ্বাচন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত আৰু এটা পৰ্যায় আছে শেষ হ'ব 17খন একেলগে হ'ব তাৰ লগে লগে ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ তেওঁলোকৰ একেলগে কেউখন আসনৰ বাবে অৰ্থাৎ 200খন আৰু এইফালে 230খন আৰু তাৰ লগে লগে তেলেংগানাত 119খন গতিকে সময় নিৰ্ধাৰিতভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 3 তাৰিখে ফলাফল
আমি আৰু কথা পাতি থাকিম ৰাজনীতিৰ আজি মাত্ৰ 5খনৰ কথা পাতিছোঁ আমি আকৌ ৰাজস্থানক লৈ কেতিয়াবা কথা পাতিব লাগিব বিশেষভাৱে কাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময় বা এক্সিট পোলেনো কি দিব 30 নৱেম্বৰত সেইখিনিও আমি জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম গতিকে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাকী ৰাজ্যসমূহৰ আলেখ লেখো আপোনালোকে বুজি পাইছে ক'ত কি ধৰণৰ এটা বাতাবৰণ ক'ত কি ধৰণৰ অফাৰ আৰু কি ধৰণে জনতাই এইবাৰ বাধ্য কৰিছে দলসমূহক নীতি সলনি কৰিবলৈ সেইখিনি বৰ ডাঙৰ কথা সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে মই পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ